Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. So, once again, you are with your English teacher Shehnaz ma'am. Do you know what is our topic of the day? Yes, of course, you know. I think the name of the chapters you can see here, no? So, what is the name of the chapter given? Yes, the name of the chapter is The Dragon Rock. So, what we will study here in this chapter? So, here, as the name is mentioned here, The Dragon Rock. So, here you will study when a valley turns dry due to severe heat. Something magical happens. So, what was the magical things that had happened here, and why this valley turned dry due to severe heat? So, we will read this story in this chapter, The Dragon Rock. Okay, so as you can see here in this page, that page number 46 of your English reader book, and chapter number is 6th. So what is the name once again? I will tell you, The Dragon Rock. So as you can see here, there are 3 pictures given on this page. Okay, so do you know all these creatures are exist in the world? So no, I don't think they are exist in the world, because this is all imagination of our mind. What we are thinking, all these are the creatures. Okay, that it happens only in our imagination. So this is also called the mythical creatures. Okay, so what we are going to read here in this story? So here, as the name is given, The Dragon Rock. So what is the meaning of Dragon Rock? So when we will study this chapter, or when we will read this chapter, so it will be clear. Okay, so what is given in this story? I'll tell you. So before starting our chapter, we have to underline the hard words which is given here. Okay, in each pages we have to underline the hard words, as well as we have to write the synonyms and antonyms of the given words also. Okay, after doing underline the words, we will find out synonyms and antonyms. Okay, so The Dragon Rock is the story of a village that is hit by drought. Okay, so here in this page number 47, you can see here few children are here, no? So they are playing with the dragon. Okay, so they are playing with the dragon here, and you also can see there is a boot hanging on his ear. Okay, on, and that a boy is there, no? So they all are trying to climb the dragon rock. So this is called dragon rock because this dragon doesn't move. ओके, सो दिस ड्रैगन डजेंट मूव. इस पिक्चर में आपको ये दिखाया हुआ है कि जो ड्रैगन है, यहाँ पे इसे हम ड्रैगन रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रॉक की तरह है, ना इसमें कुछ मूवमेंट है, ना इसकी मसल्स कुछ भी मूव नहीं करता है. ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में ना, देयर इज़ अ बॉय हु इज़ हैज़ अ स्टिक. सो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब बच्चे खेलते हैं, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, पूरे दिन भर इसके साथ खेलना. और यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे कि जो यहाँ पे मैन होते हैं, यहाँ पे वो अपना जो फायरवुड रहता है ना, इससे वो काटते हैं. ओके, जो इसका जिगजैग जो शेप दिया है ना इसके टेल पे, तो उससे वो काटते भी हैं. एंड द लेडीज़, जो लेडीज़ है यहाँ पे, वो जो उनका जो वुल होता है ना, तो वो यहाँ पे उसकी हेल्प से वुल को भी निकालते हैं. ओके, जो शिप की बॉडी में वुल होता है, तो उससे उसे इससे निकालते हैं. ओके, so this is what it is given in this page number 47, that a picture, a dragon is lying there on the ground and it is not moving. और ये dragon जो है वो बिल्कुल हिलता नहीं है, इसलिए इसे हम dragon rock कहते हैं. Okay, so now let us see what is given in the next picture or next page. So here in the next page, what had happened here? So we know that जैसे कि the dragon rock is the story of a village that is hit by drought. Okay, drought. Now do you know what is the meaning of drought? Drought means होता है सूखा, अकाल. ओके, जो सूखा अकाल होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि जहाँ पे लो रेन होती है, कम बारिश होती है, वहाँ पे सूखा हो जाता है, अकाल पड़ जाता है.
उसमें ना वाटर, ना वेल पे वाटर होता है, ना कुएं में पानी होता है, रिवर्स हैं जितनी की वो सारी ड्राई अप हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ओके, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे सब वाटर ना मिलने की वजह से सूखने लगते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पे कंडीशन सूखे की हो जाती है कि यहाँ पर कुछ अकाल पड़ गया है। ओके, सो यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पानी ना मिलने की वजह से वो भी सूखने लगते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉट, यानी कि सूखा, अकाल। सो द विलेज ऑलवेज हैड अ रॉक शेप्ड लाइक अ ड्रैगन नियर विच द चिल्ड्रन प्लेड। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, गांव में एक रॉक शेप का एक ड्रैगन होता है, मतलब वो तो ड्रैगन ही है, बट यहाँ पे ये बताते हैं कि जो एक रॉक यानी कि पत्थर के शेप का एक ड्रैगन है, सो जिसके पास बच्चे खेलते रहते हैं। एंड हाउ एवर इट वॉज नॉट अ रॉक, और क्या है कि ये एक रॉक नहीं है, इट वॉज अ रियल ड्रैगन, ये जो है एक रियल ड्रैगन है। बट द ड्रैगन नेवर मूव्ड, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो ड्रैगन है बिल्कुल मूव नहीं होता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है। द पीपल ऑफ द विलेज बिलीव्ड दैट व्हेन द विलेज इज इन ट्रबल द ड्रैगन विल सेव इट बाय मेकिंग अ लेक। ओके, तो अब यहाँ पे जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, उन्हें बिल्कुल विश्वास होता है कि जब सूखा होगा तो यहाँ पे एक जो ड्रैगन है वो ड्रैगन वहाँ पे एक लेक बनाएगा, यानी कि लेक, एक झील बनाएगा जिससे कि उन्हें पानी मिल पाएगा। बट द ड्रैगन डज नॉट मूव अ मसल व्हेन द विलेज इज हिट बाय अ ड्रॉट। ओके, लेकिन क्या होता है कि जो ड्रैगन होता है ना, वो तो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, वो तो एक ही जगह पे होता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है। ओके, बट क्या होता है, एक दिन द विलेज इज हिट बाय अ ड्रॉट टिल वन डे इट वेक्स अप एंड स्नीजेस। ओके, जब वहाँ पे सूखे की हालत होती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल हो जाता है, तो एक दिन क्या होता है, वह जाग जाता है और sneezes means छींकता है। ओके, सो यू आर ऑल्सो स्नीजिंग, नो, सो समटाइम्स वी आर स्नीजिंग, हम भी कई बार छींकते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड स्नीज। सो ये क्या होता है, उठ जाता है और छींकता है। द ईयर स्प्लिटिंग साउंड ऑफ द स्नीज मेक्स द अर्थ क्रैक एंड अ स्ट्रीम बर्स्ट फोर्थ। ओके, तो क्या होता है, जैसे ये छींकता है ड्रैगन, तो उसके जो साउंड होते हैं छींकने की वजह से वह अर्थ में एक क्रैक ला देते हैं। ओके, जो इतना उसका वास्ट साउंड था, इतना लाउड साउंड था ड्रैगन का, जब उसने छींका तो वहाँ पे एक क्रैक हो जाता है। ओके, ग्राउंड में एक क्रैक हो जाता है जिससे एक स्ट्रीम निकल जाती है। स्ट्रीम मीन्स एक पानी का स्रोत निकल जाता है, एक पानी की धारा निकल जाती है वहाँ से। देन व्हाट हैड हैपेंड, the drought ends though the dragon itself disappeared into the stream and never to be seen again. सो यहाँ पे क्या होता है, जो विलेजर्स होते हैं उन्हें एक फेथ होता है, वह अपने जितने भी उनके जो पेरेंट्स होते हैं वह अपने पेरेंट्स से अपनी एक कहानी सुनते हैं गांव के बारे में, कि जब यहाँ पे अकाल होगा या सूखा की हालत होगी या सूखा होगा तो यहाँ पे एक मैजिक होगा, यानी कि एक ड्रैगन आएगा जो हमारे लिए एक लेक या एक पानी का स्रोत बनाएगा। तो सेम थिंग होता भी ऐसा ही है यहाँ पे, जब वह उठता है ड्रैगन और चीखता है तो उसके चीखने की जो साउंड होती है, जो लाउड वॉइस होता है उसका, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे झरने फूट जाते हैं। ओके, जो ग्राउंड में क्रैक हो जाता है उसमें से पानी निकलने लगता है, और जब पानी निकलता है तो जो वहाँ के पीपल होते हैं बहुत खुश होते हैं, जो जितने भी विलेजर्स होते हैं ना बहुत खुश होते हैं वो पानी को देख के कि नाउ देयर इज़ नो कंडीशन ऑफ ड्रॉट, अब यहाँ पे सूखा नहीं होगा, तो वे बहुत खुश होते हैं। नाउ द ड्रॉट एंड्स दो द ड्रैगन इटसेल्फ डिसअपियर इनटू द स्ट्रीम नेवर टू बी सीन अगेन। और इससे क्या होता है, ड्रैगन वहाँ से चला जाता है और सूखे की भी जो सिचुएशन होती है, वहाँ पे कंडीशन क्रिएट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब हर जगह पानी हो जाता है, सब जगह प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं, सबको सफिशेंट खाना मिलने लगता है, क्योंकि जब फार्मर्स फील्ड में ग्रो करेंगे क्रॉप्स, देन ओनली वी विल गेट वुड दैट फूड, राइस, वीट,
pulses, vegetables, fruits and so on. So जब यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, जब सब अच्छे से होने लगा क्योंकि वाटर की वजह से, तो यहाँ पर फिर से लाइफ वैसे ही हो गई और सभी यहाँ पे बहुत खुश हुए। और क्या हुआ तब? यहाँ पे जो ड्रैगन था वो डिसअपियर हो गया, यहाँ से गायब हो गया और फिर उस ड्रैगन को कभी किसी ने भी नहीं देखा। ओके, सो नाउ what you have to do here? So you can see here students, here in the box some vocabulary are given. Vocabulary means some hard words meaning are given, some words are given and their meanings are also given. So you can read these hard words and you can see the meanings also. Okay, so that's all for the day. We will meet in our next video. So thank you for watching this video. We will meet in our next class.